an idle resource which has an economic value. It means if you have purchased something and if you are using that, then it is not a part of inventory. It is it is a very basic concept, but you should know that only those items will be considered as inventory which which are not being used, which have been procured, and they may be used in future, or they will be sold in future. For example, for a shop, for a grocery shop, or any shop, if you have purchased something, means that the shopkeeper has purchased something to resale, then the items which are lying in his shop are part of the inventory. But till those items are not sold, or if you are a consumer, or you are a manufacturer, the raw materials, spare parts, whatever you are procuring for the manufacturing, those will be part of the inventory till the time those items which you have manufactured are not sold from your premises. So we should know that inventory is nothing. It is an idle resource which has some economic value, and it refers to the item kept for future use and sale. The items which are using right now, so for example, you have you have purchased 10 gel pen for writing purpose. Out of these 10 gel pens, you are using one pen only at a time. The one pen which you are using right now, that is not the part of inventory, and remaining 9 pens are inventory. Now question arises, what, why we should keep those 10 items at a time? It means why we should purchase 10 items at a time? Should we not go for one pen which is required right now, and when the second pen, when the one pen will be going to be consumed and the uses of second pen will start, that only we should purchase the second pen. So this is the economic decision we are required to take in the railway also. I have given a very simple and very low value item of a pen, but you can extrapolate this example to the any items which are required in railway. So in this inventory management, we has to take the decision that how much and up to what time we are required to keep the inventory. So what are the types of inventory? Inventories are raw material. For example, in a railway workshop and railway production units, you must be knowing that we have production units in which coaches, locos, etc. are manufactured. Similarly, we have the workshops where the POH, IOH, AOH are done of these coaches and locos, and we have the sheds also where the maintenance of this loco and rolling stocks are done. So for these all workshops, production units, raw material, spare parts, consumables, in process, work in progress, finished products, these all are part of the inventory. Finished product which has not been sold or have not been put in use, it is finished product, is part of the inventory. So these are the types of inventories: raw material, components, work in progress, finished good. Now the question arises, why do we need inventory? Why we should keep inventory with us? Because as I told in my previous slide, inventory is nothing. It is an idle resource which have been kept for future use. Then question arises, why we should keep for future use? Whenever the uses arises, that only that time we should purchase. Why we should keep inventory?
Anybody knows why we keep inventory? In case of sudden requirement, the work is not stopped or halted. में स्टॉक होना चाहिए हमारे पास कभी भी रिक्वायरमेंट ओके, हो। मतलब आप कह रहे हो कि जब हमारे पास अनसर्टेनिटी हो, कभी हमारे पास ऐसा ना हो कि स्टॉक जरूरत है तो स्टॉक होना चाहिए। ओके, और कोई रीजन हो सकता है कि सर सप्लाई में अनसर्टेनिटी हो सकती है। सप्लाई में अनसर्टेनिटी हो सकती है, डिमांड में अनसर्टेनिटी हो सकती है, हमारी रिक्वायरमेंट कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। वी हैव द अनसर्टेनिटीज डिमांड, वी कैन हैव द अनसर्टेनिटीज इन सप्लाई। और क्या रीजन हो सकता है? अब सर एक साथ लेने पे सस्ता पड़ता है। हाँ, वेरी गुड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पेन का, अगर आप एक पेन हर बार खरीदोगे तो पेन, नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द पेन बट द ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब उस पेन को खरीदने के लिए जो आपको कॉस्ट लगती है, मतलब पेन की कॉस्ट तो है ही, altogether with the pen cost there is a ordering cost, means when you will go to the market and you will purchase, in that the transportation cost is required, you are investing your time, so this type all costs are also there. So हमको piecemeal purchase में खरीदने में, whenever we are doing the piecemeal purchase, that may not be economical, that's why we also require to keep the inventory. So you all have told the reason for keeping the inventory, but is there always with, but should we keep inventory? That is, these are the reasons for keeping the inventory, but keeping the inventory is always beneficial, or should or any cost is associated with the keeping inventory? What are the disadvantages? So inventory carrying cost is associated with it. Yes, very good. We have the inventory carry cost. It means keeping the inventory is not free. What are those inventory? What are the inventory carrying cost? सर स्टोरेज कॉस्ट, Yes, warehouses cost, physical storage cost. होल्डिंग कॉस्ट, Pardon? होल्डिंग कॉस्ट सर। होल्डिंग कॉस्ट क्या है? होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या होती है? क्या होती है? और होल्डिंग कॉस्ट में जैसे फिजिकल स्टोरेज कॉस्ट हो गई, और क्या हो गया? सर हाउस सब सब प्रिजर्व करना पड़ेगा अगर कोई क्वांटिटी, मतलब हाँ ठीक है, आपका मतलब आपको पेरिसेबल है, या मतलब ऐसा है कि जिसमें मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, लाइक एसी वगैरह का बिलो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो चाहिए। और क्या कॉस्ट होती है? सर लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगा के हमने यस, वेरी वेरी गुड, इट मींस इंटरेस्ट, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। अगर हमको मान लीजिए कोई आइटम 2 महीने बाद चाहिए था और आज चाहिए, तो उसमें हमको वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। आल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन्स जो मनी हमने वहां लगा दिया वो किसी और बेटर जगह पे लगा सकते थे। और so most of you have most of the reasons you have uh, you all have discussed, but we will discuss in details also. This is very important. This is also important as far as your exam is concerned. Why inventory is a necessary evil? Anybody can give the answer of these questions. Why we call inventory is a necessary evil? Yes, anyone? Sir, because it is compulsory to maintain, and as well it also causes the economic loss to us. Yes. कोई इसको elaborate करना चाहेगा? If somebody will want to elaborate. So inventory is necessary because to ensure that our operation keeps on going and the production or services are not affected, we need to maintain inventory. But then the evil is the cost associated with it that we incur. So Yes. that is why it is called necessary evil. Yes, we are required. We do not want to keep the inventory, but due to some compulsions, we are required to maintain the inventory, and keeping the inventory will cause
it is a cost is associated with keeping the inventory, and moreover, by keeping the inventory, we are not doing any value addition to the inventory. It means जो हम कॉस्ट उसके ऊपर इनकर कर रहे हैं, उसके कारण हम कोई भी उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, जो उल्टा उसका डिप्रिसिएशन ही होता है, pilferage होना है, depreciation होना है, but there is no value addition in the inventory. But even then we are investing the money on that, and therefore it is we have to take a decision that we have to keep the optimum inventory, keeping both the balances of both side. That's why inventory is called a necessary evil, because it's necessary, but it is also evil for us because it reduces our profit margin. If we will not keep inventory, we may lose some sale, or may stock out may be there, our production may come to halt, है ना? So that's why means inventory, we have to take the balanced approach for keeping the inventory. That's why there is a concept of inventory management, that how much inventory we should keep. So these are the reasons for keeping the inventory. We have already discussed. This is railway specific items, because you are new to the railway. When you will go to the shops, production houses, workshops, you will find that railway items are very specific. We are master in making the specifications which do not exist in the world. That is our beauty. I don't know what is the reason for that, but you will find that we make so strict specifications. Even for example, I give you, there is a one item is there, in commercial grade, there is a one steel is there, 304, 304 या 316. These steels are very easily, these stainless steels are very easily in the market, but in that, for example, in particular grade, the percentage of steel, but this percentage of nickel in particular steel is 8 to 10%. Okay, 8 to 10% of the nickel is there. Now what we have done, we have made a specifications of a particular grade, in that the percentage of nickel is 8.5 to 10.5. Now, as you must be aware, especially who have studied the metallurgy in their courses like mechanical engineers, they must be knowing the rate of SS, means stainless steel, is based upon the percentage of nickel in that, because nickel is the most costly item as far as the SS is concerned. So generally the rate is decided based on the nickel percentage. Now because the range is given 8 to 10%, so mostly now earlier this you can say the tolerance were given due to that time the limitation of the manufacturing technology. Now we have very advanced. So the commercial grade which is manufactured generally has exactly around 8 to 8.1% of nickel, and our specification says 8.5% to 10.5%. So what happens that those commercial grade steel gets failed in our testing, because we have specified 8.5, which is very special grade, which is not readily available in the market. And I do not know why this type of mistake, because when I was in Rail Coach Factory Kapurthala, this issue was flagged so many times. There were some who have the logic that 8.8 to 10 is the permissible grade. If any person is manufacturing 8.5, he can, even then the commercial grade will be suitable for us. But they themselves know that this logic does not work, because nowadays if the range of is given 8 to 10%, all steels will be manufactured with the percentage of nickel only 8%. So nobody is going to manufacture with the higher percentage when they manufacture with the lower percentage which is allowed in their specifications. So generally we have very specific very means I can say particular specifications, and those items are not easily available in the market. And again, it is not like that we go to the market and purchase the material. We are required to follow all the government
tendering processes. We have to follow the all purchase policies, rules, regulations. Then only we may do the purchase. So that it may cause a lot of time and very lead time is there, a longer lead time. I think you might have studied lead time in your classes in the stores. Do you know lead time? What does it mean by lead time? Anybody? Yes, sir. Order something and then Delivery. Pardon? Yes, roll number three. Roll number 306. Yeah, please. So the time spent between ordering and delivering of an item. No, you are means logically you are correct. It is time between the ordering and the delivery, but in railway lead time is from the demand generation of the demand to the time of the delivery. Because generation of demand to the placing the order also a lot of time is involved. Means the day from the demand is generated to till the material is received, it is called lead time. And lead time may be 1 day, 1 month, 1 year, depending on the nature of the item. For example, suppose we required one item which is readily available in the market, we may go and purchase the item. Then the day we generated the demand, we can receive the material. But for few items, the lead time may be very long. For example, imported items, we generally place order 1 and 1.5 year back. Then only we get the material at that time. And the longer the lead time, more the uncertainties, and we are required to more inventory with us. If lead time is shorter, uncertainties are less, and we may keep the lesser inventory. Okay, items readily available, but frequent piecemeal purchase not economical. That we have already discussed. That although there may be some items which are readily available in the market, but it is not like that. I gave the example of ball pen. It is not like that every time you go to the market and purchase a pen. And due to variation in consumption and lead time, forecast of demand is not accurate. We are required to means there is a variation in consumption लीड टाइम. अगर कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो पता चला कि आपको जो जितना आइटम लगता था उससे ज्यादा आइटम आपको रिक्वायर्ड है. अगर आपने स्टॉक नहीं रखा हुआ है, इफ यू हैव नॉट केप्ट इन्वेंटरी विथ यू, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा. तो अगर वेरिएशन आ गया कंजप्शन में, लीड टाइम बढ़ गया. लीड टाइम कैसे बढ़ सकता है? मान लीजिए आपका सप्लायर फेल हो गया, आपने यू हैव डिलेड इन प्लेसिंग द परचेस ऑर्डर, supplier has failed, so lead time आपको. And now again I am just want to tell you that after 4-5 years of putting the service in railway, you all will become the contract manager. You are not going to do like technical work. You are required to keep yourself busy in dealing with the contracts. There will be plenty of contracts, and that's why I strongly advise to all of you, please read contract law. If you are not reading contract law, I don't know is there in your, I don't think it is there in your AFP foundation course or in AIP course, but during your field, means during your CTI trainings, you all should study at least 2 to 3 lectures of 2 hours each for contract. And if it is not there of your part of means curriculum of your training, that you should study by yourself. For store officers, definitely we will have many, means I have planned sufficient number of lectures for the contract management. But nowadays everybody should know the contract management, and if they do not know the contracts law, it means they are like, means they may lose some time, and there are so many complications are there. That's why the law knowledge, at least of contract law knowledge, is must for all officers of Indian Railway. So lead time, I was telling, in the contract management, you are required to chase day in and day out with the suppliers and your contractors.
means the responsibilities of yours to complete or execute the work, but you have given already, you have given the work to the contractor, and to get done on time, it is your job. So that's why you have to chase with the suppliers and the vendors. It will be the, I think, around 50 to 60% of your time will go in the chasing with the suppliers only. So the forecast of demand is not accurate. Sometimes we have demanded, but that our forecast is not very accurate. Then we also are required to keep inventory. And if you are not keeping inventory, stock out may occur. Hence, inventory is must. You sometimes you cannot afford the stock out. You are required to keep the inventory with you, even though it is a costly affair. But what can be done? You have to do. So these are the some reasons that we are keeping inventory. So higher inventory is good. We can keep so many inventory, but it is good. Okay, we will absorb all the uncertainties, but it's bad in high cost of inventory. And on the other hand, lower inventory is good in saving money, but is bad in increased risk of stock out, customer dissatisfaction, and process interruptions. Means your train will come to halt. देखिए रेलवे में एक चीज है, ट्रेन चलनी है तो चलनी है। 8:45 पे अगर पश्चिम एक्सप्रेस में इंजन लगना है तो लगना है एट एनी कॉस्ट। वी कैनॉट अफोर्ड कि अगर वहां पे इंजन अवेलेबल नहीं है, वी कैनॉट अफोर्ड कि आपकी ट्रेन में सब कुछ रेडी है बट इंजन नहीं है। So here the cost, process interruption cost is very high. Customer dissatisfaction is at huge scale. आप लोगों को पता ही होगा सोशल मीडिया के टाइम पे तो। So we cannot afford the customer dissatisfaction and process interruption. So we are required to keep inventory, and that's why there is a management is involved. Now let's discuss one a practical questions with all of you. There is a practical aspect. Suppose you have a GM inspection after 60 days because you all are new and you have interacted 2 or 3 times with CRV and members. You are fortunate enough, but these things happens only in the probation. After probation, when you will go to the field, you will come to realize that GM is very powerful person. And it's not like that whenever you ask what you want and you can meet the GM. GM is like people reach at the fag end of their career. So you can understand that after 35 or 30 years of service, at least 35 years of service, you will become GM. So GM inspection is there happens generally one annual GM inspection happens. It means there are now 17 zones are there. Earlier it was 16. I am not considering metro. So there are 16 zones. Let's say 16 zones are there, and it is around more. The number of states are more than the number of zones. So practically, one GM has the authority in a whole state. So you may consider that GM is the highest authority in particular that zone, and the zone is very large. So generally GM inspection happens once in a year for particular section, and that annual GM inspection, there is a train is there which is called GM inspection train. GM means and in which all the coaches are there, for the one coach for electrical, one for mechanical, like that, and they do the inspections after GM inspection. So GM inspection is a big event for a particular section. Now what happens, let's say there is a GM inspection planned after 60 days. Generally it doesn't happen that before 16 days you will come to know, but let's assume that we
we know that, for example, let's we assume on 5th of the January there will be a GM inspection. Now I want to inaugurate a computer lab for my trainees during that GM inspections. Trainees means here the trainee maybe the loco pilots trainee, other the group C staffs trainees are there. For them, I want to inaugurate a computer lab, and it has been planned that we will purchase 30 desktops. A order has also been placed. Means we have placed the order also. Now we have to decide the date of supply, which should be advised to the firm कि हमको वो जो 30 डेस्कटॉप्स हैं वो कब लेने चाहिए. So we will discuss only the extreme cases. जनरली क्योंकि एक्सट्रीम आप डिस्कस करोगे तो बीच का तो वो इन बिटवीन सिचुएशंस होती है. So let's say कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम आज लेते हैं मटेरियल, मींस 2 months पहले ले लेते हैं, या we will take after 2 months, मींस जिस दिन इंस्पेक्शन है उससे एक दिन पहले लेंगे, 1 या 2 दिन पहले लेंगे. So now tell me, अगर हम आज लेते हैं तो हमारे को क्या फायदे हैं, और अगर हम जब उससे एक दिन पहले लेंगे तो हमारे क्या फायदे हैं. तो we will discuss only all the benefits which we are taking today. अगर हम आज लेते हैं तो क्या फायदे हैं. रोल नंबर 324. Sir, Yes, Anudeep. क्वेश्चन पढ़ा था. sir, can you repeat the question again? तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो Yes, sir. और क्वेश्चन क्यों नहीं सुना आपने. I heard up to the GM inspection actually. Okay. So in GM inspection, we have planned for the inspection for inauguration of computer lab. Okay. We have already ordered a place order of 30 numbers of computers. Now my question is that should we procure these 30 numbers? Means should we ask to supply these 30 numbers today, or with just one day before from the GM inspection? It's better to supply it today itself because, as you said, GM inspection is the most important thing. So it's better to be on time. So what is the benefits we will get? Na? You tell me the benefits. If the supply is received today, what benefit we will get? We won't have any, delay in work. Why delay in work? The material is required during the GM inspection. It is not required right now. It is required after only 2 months. Roll number 374. यस सर. हाँ, आपने सुना. हाँ सर. हाँ, तो बताएंगे आप कि क्या बेनिफिट्स हैं हमारे. सर अभी अगर कर देंगे तो जब जीएम सर आएंगे तो उनके सामने हमारी कुछ गलत नहीं होगा. आई मीन लाइक थिंग विल बी अवेलेबल राइट देन. Okay, you were saying we can ensure the availability of the item at that time. At that time, sir. और कोई रीजन आपको लगता है और क्या फायदा हो सकता है हमको? सर और दूसरा तो सर नहीं लग रहा है कुछ. बाकी तो सर उसको होल्ड करने के लिए कॉस्ट वगैरह हमको इनकर करने पड़ जाएंगे. वो तो नेगेटिव में आ गया. नहीं, मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूँ. Anybody else? वापस ऑर्डर करने के लिए समय रहेगा. सर क्वालिटी वाइज भी हम चेक कर सकते हैं. इन केस कुछ डिफेक्टिव पीस आ गया या फिर कुछ समथिंग हो गया तो इंश्योर कर सकते हैं जल्दी. यस. ये एक चीज हम ये भी अभी देखिए, अगर हमारे पास अभी मटेरियल आ जाएगा तो वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम्स टू डू द इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. हम उसका इंस्पेक्शन टाइम पे कर सकते हैं कि मान लीजिए उसमें कोई कमी तो नहीं है, मतलब कंप्यूटर पता चला 30 कंप्यूटर में से 20 काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, एंड वी विल हैव द कंप्यूटर्स इन एडवांस, देन वी कैन हैव कि मतलब वी कैन एंश्योर क्वालिटी ऑफ द आइटम्स, वी कैन इंस्टॉल देम प्रॉपर्ली, है ना. और क्या फायदा हो सकता है?
सर लास्ट मोमेंट रश से बचे रहेंगे हम लोग। यस, मतलब एक तरह से अनसर्टेनिटीज में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि मतलब पता चला कि अभी सप्लायर आपको बोल रहा है कि आज मतलब ठीक है मैं दे देता हूँ, वो आज की जगह कल भी देगा, ये 4 दिन डिले भी कर दिया उस सप्लायर ने तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। इट मीन्स आपने बोला कि सप्लायर को बोला कि आप आज दे दो, ठीक है आज ही दे दो, वो उसने आज नहीं दिया लेकिन 4-5 दिन उसने ले लिया, उसने डिले कर दिया 4-5 दिन का खुद की तरफ से ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर रीजन, तो भी आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया क्योंकि आपके पास तो 60 डेज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी था। लेकिन अगर आपने उस दिन किया जिसे 1 दिन या 2 दिन पहले आपने मांगा और फिर आपने बोला कि आज 2 दिन पहले दे दो और उस टाइम सप्लायर ने फेल कर दिया, सप्लायर केवल 1 दिन से फेल कर गया, लेट्स फॉरगेट अबाउट द 1 डे, व्हाई 1 आवर, क्योंकि जीएम इंस्पेक्शन ऐसा थोड़ी है कि आपके एक उसके लिए आए थे वो बैठे रहेंगे कि हाँ मतलब ठीक है अब आ जाएगा, वो तो जस्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स इज टू मोर फॉर देम हिम, 5 मिनट भी ज्यादा है, तो वो तो 5-10 मिनट के लिए आपके उसमें आएंगे इंस्पेक्शन के लिए। अब वहां पे उसको आपको 11 बजे आना था उनको और आपका कंप्यूटर से अगर 12 बजे भी पहुंचते हैं तो डिले बाय 1 or 2 आवर will be nothing, it will be like a lost opportunity. So you cannot afford even the slightest uncertainty at that time. अगर हम उस टाइम मंगाते हैं तो हमारे को क्या फायदे हैं? What are the advantage we will get if you will ask material 1 or 2 days before? सर कॉस्ट, क्या कॉस्ट क्या? सर मीन्स अगर हम आज पे करेंगे तो एक तरह से इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होगा हमारे ऊपर। यस, मतलब हमने फंड आपका हमने 2 महीने पहले ही मटेरियल को मतलब खरीद लिया और 2 महीने पहले ही हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे कि 2 महीने में हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, इंटरेस्ट लॉस था वो खत्म हो गया। और बताइए इसमें तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मेंटेनेंस ये भी है किस तरह, जैसे अगर आपने थोड़ा पहले खरीदा है तो हो सकता है कोई ड्यूरिंग ट्रेनिंग या रखरखाव में डैमेज भी पीस हो सकता है, तो उसकी वजह से फिर से लेट मंगाना पड़े, तो ऑन द स्पॉट मंगाएंगे तो थोड़ा चांस ही रहेगा कि जो भी है सब प्रिस्टीन कंडीशन में हमारे पास है। यस, वेरी गुड कि आपको 2 महीने तक उन मटेरियल्स को प्रिजर्व भी करके रखना है, मतलब बिल्कुल नया जैसा लगना चाहिए आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब आप नए कंप्यूटर लैब का ही इनॉग्रेशन कराओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको यूज करके पुराना कर दोगे फिर लगाओगे। तो 2 मंथ्स तक आपको उसका पूरा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व मटेरियल। 2 महीने का आपका जो फिजिकल स्टोरेज कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस रखने का मतलब जिसके पास भी है उसका कॉस्ट आपका इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आप लोग मिस कर रहे हो, कोई बता सकता है? तो लेटेस्ट पार्ट्स लगे हुए आएंगे प्रोबेबली। यस, लेटेस्ट पास्ट भी कह सकते हैं, पर इट इज लाइक दैट कि आपने प्लेस ऑर्डर पहले ही कर दिया है तो यू ऑलरेडी स्पेसिफाइड, आपने स्पेसिफिकेशन और रेट तो फिक्स कर दिए हैं, इसलिए वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन यू विल लूज द वारंटी ऑफ 2 मंथ्स, आपको 2 महीने की वारंटी भी आप लूज कर रहे हो। आपने मटेरियल यूज करना चालू किया 2 महीने बाद, लेकिन आपने खरीद तो 2 महीने पहले लिया। अब जनरली डेस्कटॉप में जो वारंटी होती है जनरली 1 ईयर की होती है, so you will lose the inventory warranty of 2 months without using. So that is also one of the means loss or advantage associated when you are asking material to deliver at that time of requirement. दूसरा एडवांटेज है, लेट्स से कि अगर जीएम इंस्पेक्शन ही कैंसिल हो गया तो, जबकि ये बहुत ही कॉमन चीज है कि जीएम इंस्पेक्शन, क्योंकि 2 महीने पहले तो कोई प्लान ही नहीं है कि जीएम इज सच ए बिजी पर्सन, यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। मान लीजिए उनको मंत्री जी ने बुला लिया, बोर्ड में कोई मीटिंग आ गई, देयर में बी सो मेनी रीजंस ड्यू टू दैट द जीएम इंस्पेक्शन में कैंसिल, इवन मे पोस्टपोन और इवन मे कैंसिल आल्सो, एंड यू हैव प्रोक्योर्ड दिस आइटम्स फॉर द इनॉग्रेशन। अब आपने चालू कर दिया, अब आप मान लीजिए ये होता है कि जीएम इंस्पेक्शन 4 महीने बाद होगा, तो क्या होगा? अब आपने 2 महीने पहले मटेरियल खरीद लिया और 4 महीने और लग गए, तो 6 महीने की आपका पुराना हो गया। अब नाउ इट इज नथिंग, यू कांट डू द इंस्पेक्ट, मतलब इनॉग्रेशन तो करा नहीं सकते। यू मे स्टार्ट द लैब बट यू मे मींस इनॉग्रेशन कराने का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया। सो
जो हमने डिस्कस किया वो यही था कि हमारे जो इन्वेंट्री वाला जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है कि हम पहले से इन्वेंट्री मंगा लेते हैं, उसमें क्या एडवांटेज है कि हमारी फिजिकल स्टोरेज हम सॉरी मतलब लॉसेस है कि वी हैव टू फिजिकल स्टोरेज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लॉस होगा, अपॉर्चुनिटीज है, ऑब्सोलेट हो जा सकता है मटेरियल, डिप्रिसिएशन हो सकता है, आपने रखा माउस गायब हो गया, कीबोर्ड गायब हो गया, मींस सॉरी नॉट डिप्रिसिएशन इस तरह से नहीं, डिप्रिसिएशन लाइक ए वारंटी एंड फिलफ्रेज, आपका माउस वगैरह हो गया, वेरिफिकेशन कॉस्ट हो सकता है। अगर हम उसी टाइम मंगाते हैं जो कि जस्ट इन टाइम का अप्रोच है, इट इज लाइक जस्ट इन टाइम, देन अनसर्टेनिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ द फर्म, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, क्वालिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो व्हाट इज इन्वेंटरी कंट्रोल? हमको मतलब अपना इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना है, क्वालिटी कंसिस्टेंटली चाहिए और मटेरियल जब हमको चाहिए तब मिल जाए, दैट इज हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इन्वेंटरी कंट्रोल, है ना। तो एक ऑप्टिमम लेवल पे वी हैव टू कीप द इन्वेंटरी, but then we are required to do the inventory management, we are required to have some parameters। अगर हमको यही हम ये मेजर कैसे करें कि हम इन्वेंटरी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर जस्ट आई वांट टू टेल यू होता क्या हमारे रेलवे में, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट सीन, माइट नॉट हैव सीन दैट हमारे यहाँ पे क्या होता है। आप लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ पे दो तरह के आइटम्स होते हैं, स्टॉक आइटम एंड नॉन स्टॉक आइटम। ये पढ़ा दिया गया होगा आई थिंक, आई सपोज। यस एनीवन, कि आपको ये बताया गया है कि स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम क्या होते हैं? यस सर, बताया था फर्स्ट। बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आपको नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ में बोल देता हूँ। हमारे यहाँ पे कोई से भी आइटम, एनी आइटम विच इज रिक्वायर्ड इन रेलवे, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कम से कम इस चीज को जरूर समझें इन योर फाउंडेशन कि ये मटेरियल में कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ आइटम, स्टॉक आइटम एंड नॉन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम वो होते हैं जिनकी हमारे पास रेगुलर डिमांड होती है, रेगुलर सप्लाई होती है, और नॉन स्टॉक आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा चाहिए होगी, जब आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तब आप उसको लेते हो। ओके, सो नाउ स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम में एक बहुत ही एक मीन्स बहुत बड़ा डिफरेंस जो है उसके प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिंग का। अगर आपको कोई एक ऐसा आइटम चाहिए जो कि स्टॉक आइटम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक इंडेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन इंडेंट एंड गिव इट टू द स्टोर ऑफिस। रेलवे में शेड होते हैं जो है ना, एक तरीके से डिपो, जो डिपो इज नथिंग लाइक ए वेयर हाउसेज, जहां पे हम मटेरियल रखते हैं। बहुत मतलब जो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडेंटर्स हम मटेरियल रखते हैं। हमारे डिपोज अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक रोको शेड के साथ एक डिपो होगा, कोई जो बड़े बड़े शेड्स होते हैं उनके साथ उनका डेडिकेटेड स्टोर डिपो होता है। इसी तरीके से वर्कशॉप के साथ स्टोर डिपो होता है। एंड वी आल्सो हैव दिस जनरल पर्पज स्टोर डिपो, जीएसडी, जनरल स्टोर डिपो, जिसमें अदर डिपोज की अदर कंसाइनीज की रिक्वायरमेंट को स्टॉक किया जाता है। तो ये जो डिपो होते हैं, इन डिपो में आपको कुछ नहीं करना, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू सिंपली प्लेस एन इंडेंट, मींस एक रिक्विजिशन होती है जिसको आपको साइन करना है। आप जाओगे वो मटेरियल, क्योंकि हमने क्या कहा, रेगुलरली रिक्वायर्ड होता है, रेगुलरली परचेस होता है और वो स्टॉक होता है वेयर हाउसेस में, तो आपको वो मटेरियल तुरंत आपको वो मटेरियल निकाल के दे देंगे। मींस आपको कुछ नहीं करना है, एक इंडेंट बनाना है और मटेरियल आपको मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ नॉन स्टॉक आइटम, आपको उसके बर्थ से लेके उसके डिस्पोजेबल तक सब कुछ देखना है। मींस पहले आपको डिमांड बनानी है, उस डिमांड में आपको स्पेसिफिकेशंस बनाने हैं, ड्राइंग बनानी है, सब कुछ आपको क्लियर करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, सब कुछ। फिर वो प्रपोजल जब आप बनाओगे तो वो प्रपोजल बना के उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है। अलग अलग मतलब वो आपका प्रपोजल कितनी वैल्यू का है, अगर 10 लाख का है तो कौन करेगा, 50 लाख का है तो कौन करेगा, लाइक दैट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडेंट, उसका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका अप्रूवल देता है।
Now, before approval, it may also require that proposal may be required to be concurred by the accounts, finance. रेलवे में फाइनेंस का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपकी अधिकतर रिक्वायरमेंट्स टू बी कंकर्ड बाय द अकाउंट्स. कंकरेंस मीन द अकाउंट्स विच मीन फाइनेंस की क्लास में आपको बता दिया होगा कि अकाउंट्स में कि कंकरेंस का मतलब होता है कि जो आपने प्रपोजल बनाया उसमें जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एसोसिएट अकाउंट्स, वो आपके प्रपोजल से कंकर करता है, एग्री विद द प्रपोजल. फिर उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटीज को अप्रूवल देती है. देन यू मेक द इंडेंट, वो इंडेंट जाता है. देन दैट इंडेंट इज रिक्वायर्ड टू अगेन वेटेड बाय द अकाउंट्स. एनीबॉडी नोज द डिफरेंस बिटवीन कंकरेंस एंड वेटिंग? किसी को अभी ये चीज समझ में आ गई है? अकाउंट्स की क्लास हुई है क्या आपकी? आपकी क्लास हुई है अकाउंट्स की? यार इतना तो पता होगा आप लोगों को कि अकाउंट्स की क्लास हुई है कि नहीं हुई है, या इसमें भी मतलब आप लोग कंफ्यूज हो? सर आज सुबह होनी थी सबसे पहली क्लास, बट वो हो नहीं पाई थी ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, तो आप लोगों को चलो मैं एक डिफरेंस छोटा सा बता देता हूँ, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फील्ड में आप जाओगे तो आपको बस यही 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है ना, वो तो जरूर पता होनी चाहिए. कंकरेंस का मतलब होता है आप एक प्रपोजल बनाओगे, और कंकरेंस का मतलब होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस प्रपोजल से या तो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा. मान लीजिए आपको एक अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना है, अपने चैम्बर के लिए, तो आप एक प्रपोजल बनाओगे कि ये चैम्बर में मेरे को ये फर्नीचर खरीदना है, ये है पुराना फर्नीचर हो चुका है, इसकी कोडर लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, समथिंग लाइक दैट. तो वो प्रपोजल आपका अकाउंट से कंकर्ड होना चाहिए. अकाउंट्स आपका उससे एग्री करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है. अकाउंट्स आपको ऑब्जर्वेशन दे सकता है, नो दिस फर्नीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कोडर लाइफ नहीं हुई पूरी, तो क्या कोडर लाइफ पूरी, कंडीशन तो सेम है, अच्छी है, लाइक दैट वो आपकी ऑब्जर्वेशन देगा. फिर आपको रिप्लाई देना है, फिर वो ऑब्जर्वेशन देगा, फिर रिप्लाई देना है. इस अल्टीमेटली लेट्स अज्यूम कि आपका प्रपोजल कंकर्ड हो जाता है. कंकर्ड मींस अकाउंट्स हैज एग्रीड विद योर प्रपोजल कि आपकी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है. उसके बाद आप कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाओगे, कंपिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा. जनरली अकाउंट्स कंकर कर देता है तो कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर ही देते हैं. देन आप उसका क्या करते हैं, इंडेंट बनाते हैं. अब आपका प्रपोजल बन गया, अब आप इंडेंट बनाओगे. इंडेंट इज लाइक ए रिक्विजिशन विच यू गिव टू द परचेजिंग अथॉरिटी कि ये मेरे को खरीदना है, आप मेरे को ये, मान लीजिए ये डेस्कटॉप या ये टेबल इस साइज का, इस स्पेसिफिकेशंस का, या गोदरेज का ये मॉडल, या ये मतलब इस तरह का आप स्पेक्स बनाओगे. आप पर्टिकुलर ब्रांड वगैरह मेंशन नहीं कर सकते हो, बट यू विल मेक द स्पेसिफिकेशन. वो इंडेंट जाता है वापिस अकाउंट्स के पास, और फिर अकाउंट्स उसमें इंडेंट को चेक करता है. नाउ ही चेकिंग द इंडेंट. वेटिंग मतलब चेक करना होता है कि आपका जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, क्या उसने अप्रूवल दिया? हाँ दिया, टिक कर देगा. क्या फंड अवेलेबल है? हाँ है. क्या ये रिक्विजिशन ठीक तरीके से बनाया गया है? यस और नो. तो इस तरीके से वो चेक करता है फैक्ट्स को ओनली. दे एट द टाइम ऑफ वेटिंग ओनली द फैक्ट्स आर चेक्ड. फैक्ट्स एंड डाटा जो भी उसमें एंट्री की हुई है, उस टाइम आपके प्रपोजल की द प्रपोजल में कोई कमी बेसी है वो नहीं चेक की जाती है. आपने एक बार अप्रूवल कर दिया कंपिटेंट अथॉरिटी ने, तो फिर उसके बाद उसको वो नहीं किया जाता कि ये इसमें क्या है. तो वो इंडेंट बनता है, फिर वो इंडेंट परचेज ऑफिस जाता है, परचेज ऑफिस उसका टेंडर करता है, टेंडर करने के बाद पीओ प्लेस होता है. देन सप्लायर को ऑर्डर मिलता है, वो सप्लायर मैन्युफैक्चर करता है या सप्लाई करता है डिपेंडिंग ऑन की मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं. देन यू विल गेट द मटेरियल विथ यू. मतलब आपने जब इंडेंट बनाया उसके कितने दिन बाद आपको मटेरियल मिला, ये नॉन स्टॉक में होता है. जबकि स्टॉक आइटम में क्या है, आप गए और आपको मटेरियल उसी दिन मिल गया. तो हम ये जो पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हम ये स्टॉक आइटम्स के सेंस में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन स्टॉक में ये सब चीजें नहीं होती हैं. नॉन स्टॉक में आपकी जब रिक्वायरमेंट होती है तब आप अपना इंडेंट बनाते हो और उसके हिसाब से आपको मटेरियल मिलता है. उसका जनरली स्टॉक नहीं किया जाता है. तो जो स्टॉक आइटम्स हैं उसमें क्या होता है, वो एक वेयर हाउसेस के अंदर हम उसको रखते हैं, जिसको हम डिपो कहते हैं. तो हमको ये देखना है कि उस डिपो की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो सही इन्वेंट्री, कम से कम इन्वेंट्री रख के
अपने सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वन ऑफ द पैरामीटर इज सर्विस लेवल। सर्विस लेवल होता है कि किसी डिपो में कितने आइटम्स में से कितने आइटम अवेलेबल हैं। लेट्स से इन ए डिपो इफ 1000 आइटम्स आर देयर, हर डिपो का ये होता है कि इस डिपो में 1000 आइटम स्टॉक किए हुए हैं, या 950 आइटम्स हैं, या 800 आइटम्स हैं। उसमें जब आइटम कम और ज्यादा हो सकते हैं, स्टॉकिंग मतलब पर वो स्टॉकिंग का प्रपोजल होता है कि ये आइटम हम स्टॉक करना चाहते हैं, या ये आइटम अब हम स्टॉक से हटाना चाहते हैं क्योंकि ये अब कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक दैट, बट एट पर्टिकुलर गिवन और टाइम वी हैव द आइडिया कि इस डिपो में कितने आइटम्स स्टॉक किए जा रहे हैं, एंड आउट ऑफ दोज आइटम्स हाउ मेनी आइटम्स एट ए पर्टिकुलर टाइम आर अवेलेबल, दैट इज द अवेलेबिलिटी। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। तो अवेलेबिलिटी इज द लाइक ए परसेंटेज में कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। तो जनरली हमारा टारगेट होता है कि सेफ्टी आइटम्स का अवेलेबिलिटी 90% होना चाहिए, और अदर देन सेफ्टी आइटम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द ट्रेन्स, और कुछ उसका टारगेट 95 to 98 होता है। ठीक है, तो अगर किसी दो डिपो को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इस डिपो में कितना अवेलेबिलिटी है, इसका अवेलेबिलिटी कितना है, तो उससे हमको पता चलेगा। नाउ लेट्स गिव यू वन एग्जांपल। जो डिपो है, इट इज द डिपो मैनेजमेंट ऑफ स्टोर इज लाइक ए मैनेजमेंट ऑफ हाउस आल्सो। So let's say there are two kitchens are there, kitchen A and kitchen B. In kitchen A, total number of items are दोनों, in both kitchens total number of items are 100, and available items are 90 and 95 respectively. Can anyone tell me that in which kitchen the probability of cooking food is higher? Sir, kitchen B. क्यों? Sir, because the number of items are available more in kitchen B. Does all of you agree with this, or anybody has some other observation? किसी को लगता है कि नहीं सर ये पैरामीटर सफिशिएंट नहीं है? आई थिंक आपने ये नंबर 4 की रो में मैंने इसको वाइट किया हुआ है, आपने इसको देखा नहीं। इसमें ये इसका, अगर मैं इसको सॉरी इसको हाईलाइट करता हूं, अब किस किचन में प्रोबेबिलिटी है खाना ज्यादा बनने की? Sir, kitchen ए यस, मतलब इसे आप क्या समझ में आया? आपको कुछ समझ में आया कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ? Sir, the item also matter. Which items are available and which items are not only the numbers. यस यस। सो हमारा ये मतलब नहीं है कि हमारे परसेंटेज अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो डिपो अच्छा ही होगा। उसमें उस डिपो में मान लीजिए आपके पास 95% अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो आइटम क्रिटिकल है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वही आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं है, और जो आइटम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आइटम अवेलेबल है। तो हमको, इसीलिए मैंने जब आपको पहले बताया था कि अवेलेबिलिटी का हम टारगेट देते हैं तो हम ये लिखते हैं कि सेफ्टी आइटम का अवेलेबिलिटी 100% होना चाहिए। मीन्स ऑल द सेफ्टी आइटम शुड बी अवेलेबल। अब आप उसको सेफ्टी भी बोल सकते हो, वाइटल आइटम्स भी बोल सकते हो, द आइटम्स विच आर वाइटल फॉर द प्रोडक्शन और ऑपरेशन, वो आइटम की अवेलेबिलिटी 100% होनी चाहिए। तो हम दोनों पैरामीटर्स को जज कर सकते हैं, तब हमको पता चलेगा। बाय सिंगल कि अगर कोई बोलता है कि अवेलेबिलिटी अच्छी है तो इट डजंट मीन हमको ये पता चले कि कौन सा डिपो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। नाउ माय सेकंड पैरामीटर जो कि हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट में काम आता है, दैट इज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो आप लोगों ने बहुत ने पढ़ा होगा, उसको कई जगह समझा भी होगा। आप लोगों को पता होगा व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न। इन दिस एग्जांपल इट इज वेरी क्लियरली इट हैज बीन शोन दैट कि देयर आर, लेट्स से देयर इज ए वन वेंडर, उसके पास 1000 रुपीज है, वो वेजिटेबल मार्केट जाता है, वहां से वेजिटेबल्स खरीदता है,
और फिर उसको कॉलोनीज में जाके बेचता है। वो 1000 रुपीज लेके जाता है, फिर 1500 रुपए में बेच देता है। सिमिलर फिर वो अगेन 1000 रुपीज, तब तक उसका आफ्टरनून हुआ था, उसने सोचा चलो नून मतलब 12 o'clock हुआ, ही थॉट कि हम एक राउंड और लगा सकते हैं, तो वो अगेन एक राउंड लगाता है, अगेन 1000 रुपीज की वेजिटेबल्स लेता है, अगेन 1500 में बेचता है, और इस तरीके से उसका 2 राउंड्स हो जाते हैं। इसमें इसने कितना प्रॉफिट हुआ? 2 बार में उसका 1000 रुपीज प्रॉफिट होगा। नाउ द सेकंड वेंडर इज देयर, वो क्या करता है, वो 2000 रुपीज लेके मार्केट जाता है और वो 2000 की वेजिटेबल्स खरीदता है और 3000 में बेचता है। उसको कितना प्रॉफिट हुआ? अगेन ही अर्न द 1000 रुपीज, बट बिकॉज उसने 2000 की वेजिटेबल्स खरीदी थी तो उसको ज्यादा टाइम लगा, उसने सेकंड राउंड नहीं लगा पाया। नाउ टेल मी विच वेंडर हैज परफॉर्म्ड बेटर? सर वेंडर है व्हाई? सर, बिकॉज उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। यस, ही हैज द बेटर रेट ऑफ रिटर्न, उसका 100% रेट ऑफ रिटर्न है। तो रेट ऑफ रिटर्न का ही हम अपने इन्वेंट्री से लिंक करते हैं। हमारी इन्वेंट्री में जो फॉर्मूला फॉलो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जो मतलब इंजीनियरिंग में, कि टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू द एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या बताता है? किसी को याद हो तो कोई बताए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट डज इट टेल? So maybe it tells the optimum amount of units that must be manufactured. ये बता, इट टेल्स कि हमने कितनी इन्वेंट्री रख के कितनी बड़ी सेल की, मतलब कितना ज्यादा बार हमने मटेरियल को बेच दिया। लेट फॉर एग्जांपल, मैं एक वेंडर हूं, मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए मैं आई एम ए होल आई एम ए मींस सेलर ऑफ टेलीविजन, पर्टिकुलर एलजी का, मान लीजिए आई एम ए डीलर ऑफ एलजी। नाउ क्या करते हैं, देयर इज ए टू अप्रोच। मैंने क्या किया, मैंने 10 टीवी मंगाई, उसको बेचा, फिर 10 मंगाई, उसको बेचा, फिर 10 मंगाई, उसको बेचा। तो मैंने पूरे साल भर में इस तरीके से मैंने थाउजेंड्स टीवी बेच दिए। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री मैंने अपने पास कितनी रखी एट किसी भी टाइम पे? ओनली 10। मतलब वो 10 मंगाता था, जब वो बिक जाती थी 10 टीवीज, देन ओनली मैं 1000 मतलब अगली नेक्स्ट 10 मंगाता था। और मैंने इस तरह से 1000 टीवीज बेचे। देयर में भी सम अदर सप्लायर आल्सो, वो क्या करता है कि उसने 1000 टीवी एक बार में मंगा लिए और उसने भी पूरे साल में 1000 टीवी बेचे। लेकिन उसने क्या किया, उसने एवरेज इन्वेंट्री उसकी कितनी थी? 500, क्योंकि 1000 स्टार्टिंग में 1000 थी, एंड में जाके वो जीरो हो जाएगी, तो उसकी एवरेज इन्वेंट्री है 500। उसने 1000 टीवी बेचने के लिए एवरेज इन्वेंट्री 500 रखी और मैंने केवल 10 रखी। So who have performed better? Both of them have sold the same number of TV, but turnover ratio is mine is around 100. For him, the turnover ratio is only 2. So that is the difference. Turnover ratio कि कितना एवरेज मिनिमम इन्वेंट्री रख के आप अपनी ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हो। रेलवे में भी हम यही फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा रिवर्स वे में करते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि टर्नओवर रेशियो क्या होता है। टर्नओवर रेशियो होता है फॉर रेलवे टोटल वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि हमारे डिपो होते हैं, उन डिपो में जितना भी आइटम है, उन आइटम्स की कुछ वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स किसी गिवन डेट पे या गिवन टाइम पे, मतलब हमको आज अगर टर्नओवर रेशियो निकालना है, लेट्स से कि हमारा एक डिपो है बड़ौदा में, तो बड़ौदा डिपो में आज उस डिपो में कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितनी वैल्यू का, और उसने 1 अप्रैल से लेके आज तक कितना मटेरियल इशू कर दिया अपने कस्टमर्स को या इंडेंटर्स को, उसका एक रेशियो होता है टर्नओवर रेशियो। तो आप मेरे को बताओगे कि बेटर टर्नओवर रेशियो बेटर कब माना जाएगा? कम होगा तब बेटर माना जाएगा या ज्यादा होगा तब बेटर माना जाएगा?
पर कम होगा तो बेटर माना जाएगा। यस, कम होना बेटर माना जाएगा। इसका मतलब कि हमने कम से कम इन्वेंट्री रखी हुई है और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप इशू कर दोगे टर्नओवर रेशियो उतना कम आएगा, और जितना कम आप इन्वेस्ट अपने पास रखोगे उतना वो आएगा। हम जनरली टर्नओवर रेशियो, हमारा टारगेट होता है कि हम 12 के करीब हमारा टारगेट रखते हैं कि 12 हो, और हम टर्नओवर रेशियो निकालते हैं एट द एंड ऑफ द 31st मार्च। ठीक है, 30 किसी पिछले साल का निकालना हो तो 31st मार्च को वहां पे कितना क्लोजिंग बैलेंस था और पूरे उस साल में हमने कितना मटेरियल इशू किया था, तो वो हमारा टर्नओवर रेशियो होता है। टर्नओवर रेशियो जनरली 10 to 12 रखते हैं हम, है ना, कि हमारा 12 के आसपास होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए 12 से। और 12 से बहुत कम होगा तो वो भी एक बेटर नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 31st मार्च को आपका, अगर देखो टीओआर अगर आपका 12 है, लेट्स से 12, इट मींस क्या है, इट मींस ये है कि आपके 31st मार्च को उतना मटेरियल अवेलेबल है, तो भाई थोड़ा मटेरियल तो आपको चाहिए ना अप्रैल के लिए। अगर आप सारा का सारा मटेरियल इशू कर दोगे तो फिर आप अप्रैल में क्या करोगे? अप्रैल का प्रोडक्शन के लिए, अप्रैल के ऑपरेशन के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू कीप सम मटेरियल विथ यू, सो यू कैन नॉट से इट विल बी जीरो, इट विल बी सम 10%, 20%, 10% to 12% रखते हैं कि जो हमारी अप्रैल और 30-35 दिन तक का हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो टीओआर होता है वो किसी पर्टिकुलर डे पे निकालते हैं, तो दैट इज आल्सो देयर इज सम loophole is there which I have given you in this example. Let's say कि there are 2 depots are there sorry, तो ये हम 15th मार्च की पोजीशन देख रहे हैं। 15th मार्च को डिपो 1 में, सॉरी 15 मार्च को जो डिपो 1 है उसका क्लोजिंग बैलेंस है 20 करोड़, और टोटल उसने पूरे साल में अप टू 15 मार्च 100 करोड़ का मटेरियल इशू किया, तो उसका टीओआर आया 20%। ये फार्मूला से आप निकालना, आपको आना चाहिए कि टीओआर कैसे निकालते हैं, 20/100 into 100। सिमिलरली हमने इस डिपो का देखा तो 33% था। नाउ पीसीएमएम यू मस्ट बी नोइंग द पीसीएमएम इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर। सो उन्होंने 16 मार्च को इंस्पेक्शन किया, तो उन्होंने बोला डिपो 2 को, यार तुम्हारी परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, है ना, तो उनको फायरिंग दिया गया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, 90 करोड़ का इशू किया और 30 करोड़ का अवेलेबल है, 31st मार्च आने वाला है, 31st मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो उसने क्या किया, फोर्स इशू कर दिया अपने वेंडर्स को, जबरदस्ती बोला कि आपको मटेरियल लेना पड़ेगा, और जबरदस्ती मटेरियल इशू कर दिया। और क्या किया फिर उसने, अपना बैलेंस तो 30 से 10 कर दिया और इशू बढ़ा के 90 से 100 कर दिए। डिपो ए ने जिस स्पीड से काम कर रहा था उसी पेस से काम किया, और उसका ये क्लोजिंग लास्ट का फिगर ये था। नाउ यू विल सी द टीओआर फॉर डिपो 1 इज 14% एंड डिपो बी इज 9%, बट we know that Depot 2 has not performed well। वो तो 15 दिन बाद, उससे 15 मार्च के बाद उसने फोर्स इशू किया। फोर्स इशू मतलब जब आपके कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बावजूद भी आप उसको मटेरियल दे रहे हो कि आप अपना टारगेट कम करने के लिए, अपना टारगेट गेन करने के लिए। तो ये टीओआर हमारे को सही पिक्चर नहीं दे रहा है अगर हम इस हिसाब से देखें तो, बिकॉज आपने पूरे साल भर में परफॉर्म अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट आपने 31st मार्च को किसी तरीके से अपना टीओआर, अपना क्लोजिंग बैलेंस कम कर दिया, इट डजंट गिव द ट्रू पिक्चर। तो हमको क्या करना चाहिए, देन वी विल शुड टेक द एवरेज टीओआर ऑफ ईच डे। आई वुड से ईच डे का टीओआर हमको निकाल के एवरेज टीओआर निकालना चाहिए। अगर देखो मैं इन 2 दिन का भी टीओआर का एवरेज करता हूं तो इसका टीओआर का एवरेज हो जाता है 17 और इसको टीओआर का एवरेज हो जाता है 21, जबकि मैंने केवल 2 दिन का ही किया। अगर पूरे ईयर का हम एनुअली हम ईच डे, नाउ इन द रेलवे वी हैव IMMS, इंडियन रेलवे मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम वी कैन कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच डे, है ना। सो एंड इशू कम्युलेटिव इशू फ्रॉम दैट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, सो हम डेली का हम टीओआर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको
Okay. The next is inactive and surplus items. Inactive items are those items which have not been issued in last 1 year. अगर किसी डिपो में कोई ऐसे आइटम रखे हुए हैं जो पिछले 1 साल में इशू नहीं हुए, अब इशू क्यों नहीं हुए? देयर में बी सो मेनी रीजंस कि मटेरियल नहीं चाहिए, या उन्होंने जरूरत से ज्यादा ले रखा है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसलिए वो इशू नहीं हो रहा है. तो इफ एनी आइटम इज नॉट इशूइंग लास्ट 1 ईयर, वो आइटम्स आर कॉल्ड इनएक्टिव आइटम. और अगर वही आइटम 2 साल से इशू नहीं हुआ तो वो सरप्लस आइटम हो जाते हैं. द आइटम विच आर हैव नॉट बीन इशूड इन लास्ट 2 ईयर, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर में हमको लगता है कि वो यूज हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं मूवेबल सरप्लस. और जो हमको ये लगता है कि नेक्स्ट 2 ईयर में भी यूज नहीं हो सकते, उनको हम डेड सरप्लस कहते हैं. और डेड सरप्लस को फिर स्क्रैप डिक्लेयर करके हम लोगों को वापिस डिपो में भेज देना होता है कि उसको स्क्रैप कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए. वाई? बिकॉज द आइटम हैज नॉट बीन यूज्ड इन लास्ट 2 ईयर, और अगले 2 साल भी यूज होने की उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इट मीन्स कि वो आइटम अब हमको नहीं चाहिए. तो अब उस आइटम को रख के हम उसका फर्दर डिग्रेडेशन करने के बजाय उस आइटम को हमको स्क्रैप करके बेच देना चाहिए. जितना देर से स्क्रैप बनाए करेंगे उतना कम वैल्यू हमको मिलेगा. तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि नॉट मोर देन 5% हमारी टोटल जो स्टॉक है उसका 5% से ज्यादा इनएक्टिव या सरप्लस नहीं होना चाहिए. ओके. ओवर स्टॉक आइटम, पानी, ओवर स्टॉक आइटम्स, ओवर स्टॉक आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड, लेकिन हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पड़ा हुआ है. अब व्हाट डज इट मीन बाय मोर देन अवर रिक्वायरमेंट? मोर देन अवर रिक्वायरमेंट मीन्स कि हमको मान लीजिए 2 मंथ्स की रिक्वायरमेंट का मटेरियल रखना चाहिए और हमारे पास 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट का मटेरियल पड़ा है, तो इट मीन्स द मटेरियल इज more than our requirement and those items are called overstock item. Overstock items भी better नहीं होता है क्योंकि it will एक तरीके से आपका फिजिकल स्टोरेज वगैरह को अफेक्ट करेगा. तो अब आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वेरियस वेज हैं. एबीसी एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम है, मटेरियल रिसोर्सेज प्लानिंग है, ईओक्यू मॉडल है, मिनिमम सेफ्टी स्टॉक रखने का प्रोविजन होता है, वीडी एनालिसिस होता है, एफएसएन मेथड होता है. सो वी विल डिस्कस इन जस्ट अ मिनट. आई एम गेटिंग इट. ओके. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने की. देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के कई तरीके हैं. एक तरीका यह है कि हम सारे आइटम्स का रिव्यू करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, एक एक आइटम को देखें कि वो मतलब उसका स्टॉक है कि नहीं, कंट्रोल्ड है कि नहीं. दूसरा तरीका है सेलेक्टिव कंट्रोल. सेलेक्टिव कंट्रोल मतलब हम कुछ आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लें कि ये आइटम्स का हम मॉनिटरिंग करेंगे और इनको हम छोड़ देंगे. तो हम किसका मॉनिटरिंग करेंगे, किसको छोड़ देंगे, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव कंट्रोल. फिर हो जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मींस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब हम केवल उन्हीं आइटम्स को करेंगे जो ओवर स्टॉक हो गए हैं, सरप्लस हैं या इनएक्टिव हैं. तो बाकी आइटम्स जो नॉर्मल चल रहे हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है. या वी विल यूज दी सुटेबल रिक्रूटमेंट पॉलिसी की ईयरली देख करना है, हाफ ईयरली करना है, जिससे कि हर आइटम्स का हम ईयरली एक बार रिव्यू हो जाएगा, हाफ ईयरली रिव्यू हो जाएगा. देन वी कैन डू द रिडक्शन इन द वैरायटी. सम आइटम्स बहुत ज्यादा वैरायटी रखने का भी फायदा नहीं है. इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटीज देयर वी कैन नॉट मेंटेन द प्रॉपर स्टॉक. वैल्यू एनालिसिस में मतलब हम ये देखते हैं कि वो आइटम क्या एक्चुअल में रिक्वायर्ड है कि नहीं है. So this techniques we will discuss in detail.
एबीसी एनालिसिस आप लोगों ने जरूर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा. It is based on the Pareto principle that majority of the activities are governed by the few attributes only. या इन्वेंट्री में भी ऐसा ही होता है कि अगर हमारा किसी डिपो में 70% जो आइटम होते हैं, जो 70% टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स होती है, वो 10% आइटम ऐसे होते हैं जो 70% की वैल्यू को कवर करते हैं. सिमिलरली देयर आर 20% ऑफ आइटम्स वी कवर द 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, उनको हम बी कैटेगरी कहते हैं. और रिमेनिंग 70% आइटम ऐसे होते हैं जो ओनली 10% वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. दोज आइटम्स आर कॉल्ड सी कैटेगरी आइटम्स. इसमें देख लीजिए कि इन्वेंट्री ज्यादा है, मीन्स मतलब नंबर ऑफ आइटम्स आर 10. जैसे कि मैं अगर ये बोलूं कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर दैट वी अराउंड 90% of the property of India is held by only the 10% of the people. Similarly, if I will say in the test matches, the 90% of the runs scored in all the test matches by India, by any Indian batsmen, it will be 10%. Only the 10% players might have scored the 90% of the runs. So same principle is applied in the ABC analysis, in this inventory control. आइटम केवल 10% है, नंबर ऑफ आइटम्स आर ओनली 10%, बट देयर वैल्यू इज अराउंड 70% ऑफ टोटल ऑफ द टोटल इन्वेंटरी. सो लाइक दैट वी कैन क्लासिफाई द आइटम्स ए, बी एंड सी कैटेगरी. इनका फिर कंट्रोल भी हमको ए को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए, है ना. इसका फोरकास्ट भी एक्यूरेट होना चाहिए, मॉडरेट एफर्ट डालना चाहिए, इसके सोर्सेस वगैरह भी ज्यादा होने चाहिए. So these are the ABC analysis. It is called selective inventory control. ये चार्ट से बहुत I found this chart very interesting. कि आप देखो कि ABC है, A को आप संभाल के रखो, B को आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है, A को आप बहुत अच्छे से देख रहे हो, और C की तरफ आपने पटक दिया, you are not paying any attention, आपने उसको इग्नोर भी कर दिया है. Even though it should not happen, but it means just it is like an indicator. अब मैं आपको इसको एक बहुत ही इससे प्रैक्टिकली आई वांट टू एक्सप्लेन यू. लेट्स से देयर इज ए वन डिपो व्हिच हैज द 1000 नंबर्स ऑफ आइटम्स, और टोटल उस डिपो में जो 1000 आइटम्स हैं उनका एनुअल कंजप्शन वैल्यू इज 100 करोड़. You please keep in mind that ABC analysis depends upon the annual consumption value of the item. It does not depend on the value of item, of a unit cost of the item. It depends the annual consumption value. जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे नीचे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए वन ट्रांसफार्मर, उसकी यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 50,000 रुपीज, एंड पूरी एनुअली इन ए डिपो वो 20 ट्रांसफार्मर आर इशूड, तो उनका एनुअल कंजप्शन वैल्यू हो गया 10 लाख. और देयर इज ए बोल्ट, उसकी यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज, और वो 10,000 बोल्ट इशू होते हैं उस डिपो से, तो उसका एनुअल कंजप्शन है 1 लाख. सो इट अपीयर्स दैट इट इज ए कैटेगरी एंड इट इज ए सी कैटेगरी. लेट्स से कि अगर ट्रांसफार्मर केवल 2 ही इशू होते हैं, लेट्स से कि केवल 2 ट्रांसफार्मर ही इशू होते हैं, यूनिट कॉस्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसका एनुअल कंजप्शन वैल्यू होता 1 लाख. और अगर बोल्ट हमारे 10,000 की जगह 1 लाख बोल्ट इशू होते हैं, तो बोल्ट्स का कंजप्शन वैल्यू होता 10 लाख. नाउ ट्रांसफार्मर becomes C category and bolt become A category. So you can see that I have not changed the unit cost of the item. ट्रांसफार्मर की 50,000 थी, लेकिन इवन दो उसका एनुअल कंजप्शन वैल्यू कम हो गया और वो कैटेगरी चेंज हो गई. सो एनुअल कंजप्शन वैल्यू आपकी से एबीसी कैटेगरी डिसाइड होती है, ना कि वैल्यू ऑफ द आइटम से, कॉस्ट ऑफ द आइटम से.
अब आप देखिए कि अगर हम इस 1000 आइटम में एबीसी एनालिसिस लगाते हैं, देन यू विल फाइंड that कि 10% ऑफ द आइटम्स, 10% ऑफ द आइटम्स मतलब 100 आइटम्स ऐसे हैं जो 70% का फंड यूज करते हैं, उनको हम ए कैटेगरी आइटम कहते हैं। सिमिलरली देयर विल बी 700 आइटम्स, मतलब 70% ऑफ द आइटम्स जो केवल 10 करोड़ का ही फंड यूज कर रहे हैं, एंड मतलब 10% ओनली, एंड दोस आइटम्स आर कॉल्ड सी कैटेगरी। अगर मैं इसी 100 आइटम्स पे वापिस एबीसी एनालिसिस लगा देता हूं, अगेन एबीसी एनालिसिस लगाने का मतलब वापिस इन 100 आइटम्स को फर्दर दोबारा एबीसी में कैटेगरी में कन्वर्ट करता हूं, तो 100 का 10% मतलब 10 आइटम ऐसे होंगे जो कि 70 का 70% मतलब 49 करोड़ का फंड यूज कर रहे हैं। आप ये देखिए हमने, और सिमिलर उनको कहेंगे ए कैटेगरी, और सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट दी सीसी कैटेगरी, जिसमें 490 आइटम्स आएंगे और टोटल फंड होगा 1 करोड़। उसे उठा लो, बात कर लो। सो आप देखिए वी स्टार्टेड विद 1000 आइटम्स, और 1000 आइटम्स में वी हैव सेलेक्टेड ओनली 10 आइटम्स जिसका फंड करीब करीब 50% ऑफ द फंड वी आर यूजिंग। तो उन 10 आइटम्स को बहुत सिंसियरली हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर 490 आइटम्स जो कि केवल 1% का फंड यूज कर रहे हैं, 1 करोड़। तो उसको क्या करें, उसको बल्क में खरीद के रख दीजिए, उस पर अपना ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपना पूरा ध्यान डिवोट कर सकते हैं ए कैटेगरी और स्पेसिफिकली डबल ए कैटेगरी आइटम्स में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एबीसी एनालिसिस। लेकिन इस एनालिसिस में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि दिस एनालिसिस डज नॉट गिव attention toward the importance of the item. It means the criticality of the item. ऐसा हो सकता है कि सी कैटेगरी आइटम है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग ऑफ द ट्रेन से, और क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये हमारा एनालिसिस फेल हो सकता है। तो इसलिए एबीसी एनालिसिस के साथ हमको एक और एनालिसिस करना पड़ता है, दैट इज बीईडी क्लासिफिकेशन। वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल एंड डी फॉर डिजायरेबल। वाइटल आइटम्स वो आइटम होते हैं जिनको हमको अगर चेंज करना है, उनका हमारे पास कोई करेक्टिव टाइम नहीं होता। वी डू नॉट हैव एनी करेक्टिव टाइम फॉर दी वाइटल आइटम्स, वी आर रिक्वायर्ड टू चेंज देम इमीडिएटली। एसेंशियल आइटम्स आर दोज आइटम्स which are critical for the operation, but अगर वो नहीं भी अवेलेबल है तो हम थोड़ा टाइम अपना काम चला सकते हैं। और डिजायरेबल आइटम्स वो होते हैं जो कि अगर नहीं है तो इतना अफेक्ट नहीं करते, बट बाद में जब जरूरत पड़े, जब चाहिए तब हम उनको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इन दोनों एनालिसिस के बेसिस पे एक मैट्रिक्स बनती है एबीसी एंड बीईडी मैट्रिक्स। जो एबी मैट्रिक्स कहती है, मींस एबी मतलब हाई वैल्यू वाइटल, ये हाई कंजप्शन वैल्यूज आइटम्स हैं और वाइटल आइटम है, तो इनको बहुत क्रिटिकली हमको स्क्रूटनी करना पड़ेगा। जो एडी आइटम्स मींस दीज आर हाई वैल्यू आइटम्स, हाई कंजप्शन वैल्यू आइटम, बट डिजायरेबल। डिजायरेबल इन द सेंस मतलब ये हमको नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड डिस्करेज द प्रोक्योरमेंट, because these will invest our so much money will be invested in this. We should avoid this and we should discourage the procurement of AD category items. CV category means these items are very vital but value is very low. So what we should do, we should do the liberal procurement, means उनको खरीद के हमको रखते हैं। Even it may happen that we may procure for 2 years requirement, and we should keep them aside because it is not going to affect our means our inventory very much. और CD तो रूटीन वाले हैं, ये डिजायरेबल भी है और सी कैटेगरी भी है, इन पे हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टॉक आइटम कैसे करते हैं। तो उसका एक फार्मूला है ये कि कैसे निकालते हैं कि हमको इन रेलवे व्हाट वी डू ना,
वी आर राइट नाउ वी मस्ट, मतलब ये तो बहुत डिले हो गया नवंबर. जनरली इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त वी मेक द प्रोक्योरमेंट, वी प्लेस द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. मीन्स अभी हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए सप्लाई ऑर्डर्स ऑलमोस्ट प्लेस हो चुके होंगे फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ द आइटम्स. तो उनकी रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आपको पटनायक साहब की क्लास में आपको बताया जाएगा, जो एसपीएमएम की क्लास होगी उसमें बताया जाएगा. उसका ही दूसरा एक तरीका होता है वो, बिकॉज दैट विल नॉट बी कवर्ड बाय हिम, सो आई एम कवरिंग हियर ओनली. दैट इज मैक्सिमम मिनिमा सिस्टम. ये सिस्टम जनरली हम रेलवे में फॉलो करते नहीं है, बट इसमें क्या होता है, ये ग्राफ, इट इज वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट we maintain a maximum level of any item and we maintain a minimum level. Minimum is not zero. Zero to minimum is called buffer stock, BS, buffer stock. It means whenever there will be a fluctuation in our supply, demand, etc., then the buffer stock will be used. तो जो मैक्सिमम होता है वो हमारा एक रेगुलर कंजम्पशन है. ये ग्राफ बहुत सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है कि रेगुलर हमारी डिमांड है तो हमारा स्टॉक कम होता जा रहा है. यू सी द स्टॉक इज कमिंग डाउन. एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे हमको पता है कि ये लीड टाइम इतना है और आज हम ऑर्डर करेंगे तो इतने लीड टाइम के बाद हमारे को सप्लाई मिलेगी. तो एट दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल. एट दिस पॉइंट वी प्लेस द ऑर्डर एंड अवर ऑर्डर प्लेस किया है, सप्लाई नहीं आई है, तो हमारा प्रोडक्शन, हमारा जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है. The stock is going down, and at this point when our stock reaches at minimum, that time we receive the supply, then again our stock goes up, it reaches to maximum, and then again the same cycle repeats. So the maximum minus minimum is nothing, it is EOQ, economic order quantity. That how much quantity we should order, we calculate by a formula. This is which is called which we'll discuss in the next slide. This is economic order quantity. This graph is very simplified version because I have not discussed in detail because it is not dealt in railway. We generally do not follow maximum minimum method. It is just for the academic purpose. Generally we follow this recoupment, annual indent, and it will be discussed in detail by the SPMM in his class. So economic order quantity, I have already told, there to keep the inventory, there are two costs are associated. One is ordering cost. Ordering cost is not the unit cost of the item. The economic order quantity does not depend of the unit cost of the item, but it depends on the ordering cost and inventory carrying cost. Ordering cost means it is a cost which is incurred to bring the material at your depot. Means to procure the material and to procure the material and to bring the material up to your depot, the cost which is whatever the cost is incurred, that is called ordering cost. In this, like indent scrutiny cost, PO प्लेस करने की कॉस्ट होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, सप्लायर्स को आप जो चेज कर रहे हो तो आपका जो चेजिंग कॉस्ट है वो भी कॉस्ट होती है ना, रिसिप्ट करने की कॉस्ट होगी, इंस्पेक्शन करने की कॉस्ट होगी. दीज ऑल कॉस्ट आर ऑर्डरिंग कॉस्ट, पार्ट ऑफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब ये मटेरियल आपके डिपो में आ गया. अब डिपो में इस मटेरियल को तब तक रखना है जब तक कि वो मटेरियल इश्यू नहीं हो जाता. तो मटेरियल आने के बाद टिल द मटेरियल इज इशूड टू द इंडेंटर, जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट. तो उसमें क्या होगा, फिजिकल स्टोरेज, इंटरेस्ट लॉस्ट, ये अपन ने पहले पढ़ ही लिया है, ये सब कॉस्ट होती हैं. This is very simplified table for your understanding. For example, let's assume that कि आपके किसी डिपो में किसी आइटम की रिक्वायरमेंट 1200 है, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट 1000 रुपीज है और इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट है 20 रुपीज. नाउ यू सी, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 1200 है तो मैं इसको कई तरीके से कर सकता हूँ. आइदर आई कैन प्लेस वन ऑर्डर ऑफ 1200 और आई कैन प्लेस टू ऑर्डर ऑफ 600 और ऑफ 3 orders of 400 each, like that.
तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाता हूं, if number of order increases, you will see that ordering cost will also increase. But inventory carrying cost will decrease. And total cost, which is the sum of the ordering cost and inventory carrying cost, first it decreases, then it is again increases. And at one particular time it is minimum, and that is called economic order quantity. It can be explained in a better way in a graph. You can see when the order quantity increases, we have seen the ordering cost decreases, inventory carrying cost increases, and the total cost is minimum at one particular time. That is known as economic order quantity. In this economic quantity, we have made some assumptions that there is a no discount, and like that there are there is a no fluctuation in lead time. Cost over means either you purchase 1 piece or 100 piece, cost remains same. Like that we have made some basic assumptions for the derivation of this formula. So this is the formula. So you can see the economic order quantity does not depend on the unit cost of the item. It depends only the demand per year. Holding cost means this cost of ordering, CO, and cost of inventory carrying cost. So this is one example by which we have calculated, and we find that if annual requirement is 10,000, cost per order is 40, cost per unit is 100, so the economic order quantity will be 400. So by this we generally calculate the economic order quantity. Economic order quantity is generally used in the maximum minimum system, not in the annual recoupment system. So questions, if anybody has some questions, he or she may ask questions right now. Otherwise, we will have the session in tomorrow for I think tomorrow is for class 3A, sorry 3B. I think I will circulate it. 3A from group 3A. Have you received information from your CD regarding my contract class? No, sir. Okay, so I have sent the mail, but I don't know it is because 3B. I think tomorrow from 4:30 we will have the 45 minutes. This is only optional. Those who are really interested and want to ask questions, only those are invited. Rest if they want to learn by their own, they can do. It is not compulsory to attend the class. Only those who are interested, and it is